السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، زرعی پیداوار اچھی ہونا ایک خواہش بھی ہے اور ایک خواب بھی، اور اس کی تکمیل کیسے ممکن ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے اچھی زمین، اچھا بیج اور اچھی ادویات کا حصول اور اس کا استعمال، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہم آج بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب ڈاکٹر انجم علی بھٹر صاحب۔ السلام علیکم انجم صاحب۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رشید احمد صاحب، جو کراپ لائف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر انجم علی بھٹر صاحب، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا بھی فوکس ہے کہ ہم اچھی زرعی پیداوار حاصل کریں اور اس میں خود کفیل ہوں، خاص طور پہ فوڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ بھی، یہ خواب آپ کی نظر میں کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو جی، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کرنے کا موقع دیا۔ بنیادی طور پہ جی ہماری ایک غریب پاپولیشن ہے، اور غریب پاپولیشن کو سیف فوڈ چاہیے، جو نیوٹریشیس بھی ہو، جو اویلیبل بھی ہو، جو اسیسیبل بھی ہو۔ اور اس فوڈ کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ فوڈ ہماری لوکل نیڈز کے مطابق ہو۔ سیریلز کو ہم پہلی پریفرنس کے طور پہ دیکھتے ہیں، جس میں گندم ہے، چاول ہے اور کارن ہے۔ اگر آپ تینوں کراپس کو دیکھیں تو ہماری پر کیپٹا اویلیبلٹی بڑھ رہی ہے، اور اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے کیلری انٹیک۔ کیلری انٹیک میں ہماری پاپولیشن میں جہاں پہ غربت ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احساس پروگرام اور دوسرے بہت سارے فوائد دیے جا رہے ہیں تاکہ اس پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کی خوراک کی ضروریات پوری کی جائے۔ اس کے علاوہ پھر ہم ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کی جائیں جس سے یہ خوراک نہ صرف ہمارے لیے صحت مند ہو، بلکہ جہاں ہم یہ خوراک بھیجنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پاپولیشن کے لیے بھی صحت مند ہو، جس میں ہمارا پیسٹیسائڈ یوز آ جائے گا، فرٹیلائزر اپلیکیشن آ جائے گی، سوئنگ ٹائم آ جائے گا، اور بہت ساری باقی ٹیکنیکس ہیں جس کو ہم ٹریسیبل ٹیکنیکس کہتے ہیں، تاکہ جو بھی یہ خوراک خریدے اسے پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا پریکٹسز اڈاپٹ ہوئی ہیں، کس ایریا کے اندر یہ کاشت ہوا ہے، اور اس طرح یہ خوراک پاکستانیوں کے لیے بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے جہاں پاکستان یہ خوراک بھیجنا چاہتا ہے یا بھیج رہا ہے، اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اور آپ نے مینگو ویلیو چین کی بات کی دیکھا ہوگا، اس میں بھی یہی ٹیکنیکس ہیں۔ مینگو کو رجسٹر کیا جاتا ہے، پھر ٹریسیبل فارم سے اس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی مینجمنٹ ٹیکنیکس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ رائس میں بڑا چیلنج آ رہا ہے، تو رائس میں رسپانسبل یوز آف پیسٹیسائڈ کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ پروگرام چل رہے ہیں۔ اس طرح باقی کراپس میں بھی پروڈکشن ٹیکنالوجی کو بہتر کرتے ہوئے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ، پھر اس کی انٹینسیفیکیشن تاکہ کاشتکار کے منافع میں اضافہ، اور پھر ڈائیورسیفیکیشن تاکہ مونو کلچر سے ایک ہی کراپ کو بار بار کاشت کرنے سے جو زمین کے مسائل ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے، اور پھر ہارویسٹ اینڈ پوسٹ ہارویسٹ لاسز میں کمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کو ہم ویلیو ایڈیشن کے ساتھ اس فصل کو محفوظ کرتے ہوئے، پروسیس کرتے ہوئے، اس میں زیادہ بچت کر کے نہ صرف انڈسٹریل بیس کو اسٹیبلش کرنا بلکہ کاشتکار کے بھی منافع میں اضافہ کرنا۔ یہ ٹوٹل ٹیکنیکس ہیں، یہی پاکستان کے اندر پالیسیز ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی جو ایگریکلچر پالیسی بنائی، اس کا بھی مین فوکس انہی چیزوں پہ ہے۔ آپ نے کہا فوکس ان چیزوں پہ، لیکن آپ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیے بغیر یا ان کا تعاون حاصل کیے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نتائج ہیں اسے حاصل کر پائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ریزنیبل سا شیئر ہے ان کا اور ان کی انوالومنٹ ہے اس میں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں سارے اس میں؟ دیکھیے، ریاست کا کام ہوتا ہے ایک رپل ایفیکٹ، ایک وائبس کریٹ کرنا، سر اویئرنیس کریٹ کرنا، جی سر، اور اویئرنیس کریٹ کرتے ہوئے سوسائٹی کو ایک سسٹم کی راہ دکھانی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ یقیناً پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، اور ہر فیکٹر میں ہے۔ میں بات کروں گا ہمارے فرٹیلائزر انپٹس کے اندر، سیڈ کے اندر،
पेस्टिसाइड्स के अंदर, इवन इरिगेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि आज हम सेंट्रल पिवट सिस्टम की बात करते हैं, आज हमने स्पेसिफिकली जो पानी के जो टेक्निक्स हैं या उसके गैजेट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, मशीनों की बात कर रहे हैं, तो ये सारा प्राइवेट लेड ही होता है। और सरकार जो है वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और अच्छी रेगुलेशन के साथ इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसी तरतीब देती है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी रहनुमाई कर रहा होता है, मदद भी कर रहा होता है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर, और असल जो टारगेट है, रिज़ल्ट है कि वो अच्छी पैदावार लेना। डॉक्टर रशीद अहमद साहब, आप क्रॉप लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप क्या समझते हैं जो बात अंजुम भुट्टर साहब ने की कि अच्छी ज़रूरी पैदावार के हसूल में जो आप मल्टी नेशनल कंपनीज़ का सीड के हवाले से और एग्रो केमिकल्स के हवाले से जो रोल है, क्या वो रोल प्ले कर रही हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में शामिल किया। सर, बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर एक इनके पास एक पावर रेगुलेशंस भी होती है, जी सर, ठीक है ना, और प्राइवेट सेक्टर का काम ये होता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को उस रेगुलेशन के ज़रिए असर और उसको फॉलो करते हुए उसमें फार्मर की हेल्प करे। हम अपने आप को एज ए यानी कंपनी एज इंडस्ट्री अपना पार्टनर समझते हैं गवर्नमेंट के साथ फॉर द वेलफेयर ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान और वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये हम इनके पार्टनर ही हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी एक जिक्र किया था रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का, तो उसमें हम इनके बाकायदा पार्टनर हैं। और हम अलग से भी जहाँ पे हमारी यानी स्ट्रेंथ है, जिस एरियाज़ में हम लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं, फार्मर इंटरेक्शन है, हमारा एक अपना फार्मर बैंक है, उनके साथ जो भी हमारा, तो उसमें ये चीज़ हमारी लाजमी तौर पे शामिल होती है कि हमने एजुकेट करना है, हमने फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ऑन द यूज़, सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, जिसको हम रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो आप कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर, आपने कहा कि हमारा मोर देन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो चीज़ें जी, उसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि हमारी, जिस तरह आपने अभी क्रॉप लाइफ पाकिस्तान एसोसिएशन का जिक्र किया, तो इसके अंदर हमने कुछ सब कमेटीज़ भी बनाई हुई हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ को केटर कर रही हैं। और इसमें हमारी एक एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप कमेटी है और उसमें हम बाकायदा प्रोजेक्ट्स चलाते हैं हर साल। इस वक्त भी रिजवानी साहब, मैं आपको ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हम इस साल एक कंटेनर मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है ना वो चलाने लगे हैं क्रॉप लाइफ की तरफ से। और उस कंटेनर मैनेजमेंट में आपको पता है कि यानी जिस तरीके से रिसाइकलिंग होती है, ख़ास तौर पे एंड यूज़र लेवल तक, उसी कंटेनर को वो जिस तरह से यूज़ करते हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है और जिस तरह से हादसात हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हमने बहुत सीरियसली हम इसको टेकअप कर रहे हैं। और इसमें हम डॉक्टर साहब की और इनके स्टाफ की भी मदद लेंगे, इनको हम शामिल करेंगे उस कैंपेन के साथ। तो ये एक यानी कि हमारी ये एक बहुत हाई कमिटमेंट है स्टूवर्डशिप की, जो एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। अच्छा, बात हो रही है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जी, जब ये बात होती है, गवर्नमेंट भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, तो आपके जो स्टेप्स हैं कि जी आपने हल्का सा इशारा तो किया कि आपने क्या किया, लेकिन ओवरऑल क्रॉप लाइफ किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेके चल रही है इस हवाले से? देखिए, उसमें ये है कि अगर हम पूरे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखें ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द केमिस्ट्स लैब, सर, वहाँ से ये शुरू होता है, सर, फिर सिंथेसिस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है, उसके बाद ये वेयर हाउसिंग और स्टोरेज में आता है, फिर जाकर ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है, फार्मर लेवल तक जाता है, फिर रिसाइकलिंग, यानी कि उसके बाद एंड यूज़र कंटेनर लेवल। हर लेवल पे यानी हर एक स्टेप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और उस प्रोडक्ट को जो कि जिसकी इतनी मेहनत से डेवलप किया है उसकी लाइफ को भी एक्सटेंड करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे फार्मर को फ़ायदा पहुंचाता रहे। तो उसमें हम यानी हर जगह पे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बताता हूँ कि यानी वेयर हाउसिंग की हम बात करते हैं। अगर आप वेयर हाउसेज विज़िट करें, पर्टिकुलरली जो हमारे लार्ज वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे बहुत सारा अभी भी गुंजाइश है कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्लोरिंग की मिसाल देता हूँ कि फ्लोर वैसा होना चाहिए जो इम्परमिएबल हो, यानी जिसमें बिल्कुल कोई सीपेज ना हो, यानी कि फ्लोर ऐसा हो जो लिफ्ट हो, ताकि अगर कुछ स्पिलेज हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो वहाँ से कलेक्ट किया जा सके। एक कलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए बड़ा सेफ। इसी तरह अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में चले जाएं तो उसमें हम ये चाहते हैं
कि हमारी कुछ कंपनीज ऐसा है कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और जिनके ट्रक्स को बाकायदा वो मॉनिटर करते हैं। सही। ये इस तरीके से हम लोग यानी उसमें पूरा रोल प्ले करते हैं और फार्मर लेवल पे हम अपनी हर फार्मर मीटिंग के अंदर लोगों को ये समझाते हैं कि भाई आपने खाले के ऊपर आपने कंटेनर को नहीं धोना, मशीन को नहीं धोना, ठीक है ना। साथ ही वो कैटल जो है ना वो पानी पी रहा होता है या ख़वातीन कपड़े धो रही होती हैं। तो हम हर लेवल पे इसकी एजुकेशन जो है ना वो कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल यूज़। अच्छा, जो बात रशीद साहब कर रहे हैं, अगर आपसे बात कीजिए डॉक्टर साहब, तो एक जो हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ है, चीज़ें हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा इनको भी करना है, लेकिन क्या हमारा जो फार्मर है वो इनका इस्तेमाल जो है एग्रो केमिकल्स के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस रखता है या वाकई वहाँ भी गुंजाइश है उसको ट्रेन करने की? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज भी कर सकती हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी कर सकता है? देखें जी, ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है। हमारे काश्तकारों का नंबर बहुत ज़्यादा है और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल डिफरेंट होने लग गया है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पेस्ट पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ आई है, जिसमें उसकी लाइफ पीरियड शॉर्ट हुआ है, जो सेकेंडरी पेस्ट है वो प्राइमरी पेस्ट बन गए हैं बहुत सारी इश्यूज में, जिसमें मैंगो में आपने देखा होगा इन्वेसिव पेस्ट आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह ये चैलेंजेस ज़िम्मेदार या फार्म लेवल के ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं। पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड के साथ वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी, और इसकी इम्पोर्टेंस को भी हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि काश्तकार को पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के ऊपर, नोज़ल एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा आगाही दी जाए, ट्रेनिंग करवाई जाए। इसका डेडिकेटेड प्रोग्राम भी हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पावर स्प्रेज जो लोकस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास थी, हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए काश्तकारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम IPM की बात कर रहे हैं। अब IPM जो फार्मूला है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें पेस्टिसाइड एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल यूज़ के तौर पे ही इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक। जिसमें केमिकल एप्लीकेशन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट सर, बट हम इससे इनकार नहीं करते। हम पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की बात करते हैं विदाउट डिटीरिएटिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस, विदाउट डैमेजिंग द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। और आज के जो हालात देखें, आज अल्लाह ताला की बेपाया रहमत की वजह से क्रॉप सिचुएशन, कॉटन की मैं बात करूंगा, बहुत अच्छी है इस वक्त तक। लेकिन मैं बात करूंगा इसलिए कि जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं वो इस सेंसिटिव क्रॉप के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ इम्पेक्ट करती हैं। हम बार बार ज़िम्मेदार की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि पेस्ट स्काउटिंग को इंक्रीज़ करें, पेस्ट स्काउटिंग को इंक्रीज़ करें, खेत को ज़रूर देखें और जैसे ही कोई तब्दीली आती है उसको भांप के ऊपर उसका कंट्रोल करें। अगर आप कल्चरल कंट्रोल के साथ जा सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी इस साल हमने काफ़ी इस एरिया के अंदर इंटरवेंशंस की हैं। आज क्रॉप बचाने की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन आपकी बहुत केयर के बाद सॉफ्ट पेस्टिसाइड की होनी चाहिए, ताकि उसके कोई जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो स्टार्ट ऑफ द क्रॉप के ऊपर ना आए। और दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल यूज। अच्छा, जिसमें कंटेनर मैनेजमेंट भी बात है, हम उस पर बड़ी अहम बात कर रहे हैं, हम इस पर वापस आते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और इसी मौजू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त जो कपास की सूरत हाल है और उसमें आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं और उसमें जो अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ सकता है मुमकिन तौर पर, उस हवाले से डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब ने बात की। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि तैयार रहना चाहिए, एक अहम मरहला है, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त आप जो एक्सपेक्ट करते हैं एग्रो केमिकल इंडस्ट्री से, वो क्या करते हैं? देखिए जी, हम तो हर जगह के ऊपर रिस्पॉन्सिबल यूज़ की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। हम कहते हैं कि क्रॉप को बेहतर
اور کراپ کے اوپر لگے ہوئے ہر پھول کو ٹینڈا بنا کے ہارویسٹ کرنے کا نام ایک بہتر ٹیکنالوجی ہے. بالکل صحیح. اس میں ہر آدمی نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم دعا گو بھی ہیں اور دوا کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی فصل لگی وہ صحت مند رہے اور کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ پیداوار دے. پیسٹیسائڈ انڈسٹری کے ساتھ ہمارے ایشو ضرور ہیں، لیکن ہم اس بات کے اوپر بالکل متفق ہیں کہ اچھی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، صحیح ریکمنڈیشنز کے ساتھ، صحیح ضرورت کے مطابق پیسٹیسائڈ کا استعمال آفٹر فالوئنگ دی IPM ٹیکنیکس اگر کیا جائے گا تو وہ کراپ کو سٹریس میں نہیں لے کے آئے گا. صحیح. اس میں بہت سارے پروڈکٹ اویلیبل ہیں، ان پروڈکٹ کی ریکمنڈیشن کی جا سکتی ہے. میں یہ بھی عرض کروں کہ 12 سے 21 جولائی کے درمیان بارشوں کی پیشین گوئی چل رہی ہے. موئسچر بڑھے گا. موئسچر بڑھنے سے کراپ ایریا انڈیکس بھی بڑھ رہا ہے. فصل قد کر رہی ہے. زمیندار پانی لگا رہا ہے. حبس بڑھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کمپیٹیبلٹی کریٹ کرتی ہیں سکنگ انسیکٹس کے لیے. سر کاشتکار فوراً دیکھے اور سپاٹ کنٹرول پہ جائے. صحیح. بڑے کنٹرول پہ نہ جائے. اپنے کھیت کو ایئرپورٹ نہ بنائیں صحیح ہے. تاکہ دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہوں. میں گاؤں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گاؤں کی سوسائٹیز ہیں اور اپنے محکمے کے کارکنان ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ ویجیلنسی سے کاشتکار کی مدد کے لیے آئیں. اور اگر کوئی میرا کاشتکار بھائی اپنے کھیت میں کوئی پرابلم دیکھے وہیں پہ کنٹرول کرے اور اپنے ساتھ والے کاشتکار کو آگاہ کرے تاکہ ایک کمیونٹی پیسٹ مینجمنٹ کے پروگرام کو آگے لا کے کم خرچے کے ساتھ بہتر پیداوار لی جا سکے. جی آپ نے کہا بہتر پیداوار، کپاس کی بہتر پیداوار کا حصول ہمارا ہدف ہے. ڈاکٹر رشید صاحب، جو بات انجم صاحب نے کی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا انڈسٹری ہے، ایک ایگرو کیمیکل انڈسٹری، وہ اپنی ریسرچ اور ایک کوالٹی پروڈکٹ جو انوائرمنٹ کو سوٹ کرتی ہو اور اس کے ڈیمیجنگ نہ ہو، اس کے لیے سپورٹ کے لیے تیار ہے؟ یا وہ جو کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، تو کیا ان تحفظات کو آپ نے یقیناً دور کر لیا ہے؟ دیکھیے رضوان صاحب، اگر ہم پروڈکٹ لائف سائیکل کی طرف دیکھیں نا سر، جو کہ ایک کیمسٹ کی لیب سے شروع ہو کے آگے تک چلتا ہے سر، ٹھیک ہے نا، اس میں جو سب سے لمبا پیریڈ ہوتا ہے جو 8 سے 12 سال تک کا ہوتا ہے، وہ لیبارٹری سے لے کر سینتھسس پروڈکٹ کی جو انیشیل مینوفیکچرنگ اس تک ہوتا ہے، جس کے اندر آپ اینالاگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جس کے اندر آپ انوائرمنٹل کی سیفٹی کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اور جس کے اندر آپ ٹاکسیکولوجیکل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جو سب سے لمبا پیریڈ ہوتا ہے ہمارا. تو ہم ان چیزوں کو جو دیکھتے ہیں نا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے نا کہ ایک انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا سافٹ پروڈکٹس کا، ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری جو نئی کیمسٹری آ رہی ہے، اور ویسے بھی کراپ لائف پاکستان ایسوسیشن جو کہ ایک انٹرنیشنل فیڈریشن ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز اس کی ممبرز ہیں، اور ہم بیسیکلی وہ کمپنیز ہیں جو یعنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، ڈسکوری کا کام کرتے ہیں. اس ڈسکوری میں ہماری جو سب سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے وہ بایولوجیکل ایفیکیسی کے ساتھ ساتھ اس کی انوائرمنٹ فٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس جو نئی کیمسٹریز آ رہی ہیں، اس کی اگر آپ LD50 کو ہی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ یعنی کہ ہائی ہوتی ہے، جو کہ یعنی کہ بہت سیف پروڈکٹس ہوتے ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں. اور پھر ہم اس کو یعنی کہ کراپ ٹالرنس کے اوپر بڑی اسٹڈی کرتے ہیں، جس طرح سافٹنس کی بات کی ہے. تو ہم یعنی رجسٹریشن میں اپلائی کرنے سے پہلے ان سارے پیرامیٹرز کو ہم 8-8 10-10 سال تک انٹرنیشنلی اور اپنی لوکل انوائرمنٹ میں کم از کم 3 سے 4 سال تک ہم اس کو اسٹڈی کرتے، پھر جا کے ہم ان کو کرتے ہیں. دوسرا سر، میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب نے ایک ریسپانسبل یوز کی بات کی اور اپلیکیشن ٹیکنالوجی کی بات کی. میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں. میرے نزدیک اگر میں ڈیفائن کروں ریسپانسبل یوز، وہ صرف سیف یوز نہیں ہے سر، وہ کریکٹ یوز بھی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اس وقت ہم نے ایک یعنی سروے کنڈکٹ کیا ہے، بڑا ہی کمپریہنسو سروے، جو پنجاب میں اور سندھ کے کچھ اضلاع میں، جہاں پہ کاٹن، خاص طور پہ کاٹن کو فوکس کر کے، کہ وائٹ فلائی کا جو کنٹرول نہیں ہوا پچھلے سالوں میں، اس کی ریزننگ تک ہم پہنچ سکیں کہ کہاں تک یعنی کہ کیا بات ہوئی ہے اس میں. تو اس میں اپلیکیشن ٹیکنالوجی ہمارے خیال میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا.
तो और हमने पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के यहाँ मुल्तान ऑफिस की भी मदद हासिल की, उनसे ये पूछने के लिए कि जी हमने सर्वे करना है, आप हमें वो हॉट स्पॉट्स भी बताइए ताकि हम वहाँ पहुँचें, उनको यानी एग्जैक्ट डेटा वहाँ पर लिया जा सके। आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम जो डॉक्टर साहब के साथ अभी ब्रेक में बता रहे थे कि आप कैसे शेयर करना है वो डेटा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। इन्होंने नोज़ल्स की बात की, बहुत ज़बरदस्त ये बात थी। नोज़ल में हमने एक सवाल पूछा फार्मर से कि जी ये बताइए कि आपको पता है कि नोज़ल्स की किस्में भी होती हैं? 98% लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता। हमने उनसे जब ये सवाल किया कि कौन कौन सी किस्म होती है जो आप यूज़ करते हैं, तो फार्मर ने हमें कहा जी 600 राखों वाली, 400 राखों वाली और पैसे वाली, किसी को नहीं पता था हॉलो कोन नोज़ल भी होती है। फिर किसी ने ये भी यहाँ तक बताया कि जी हमने टीजेट नोज़ल इस्तेमाल की थी, और किस चीज़ के लिए? कॉटन वाइट फ्लाइट के लिए। यानी ये इस कदर यानी कि एक ऐसा एरिया है, ये चैलेंजिंग एरिया है जिसके ऊपर ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए भी या लोकल कंपनीज़ के लिए भी और ख़ुद महकमा ज़राअत सब के लिए ही चैलेंजिंग है ना। मतलब जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो तो आम ग्रोअर को समझ नहीं आएगी और ना नहीं, हम उसको सिंपल अल्फाज में हम यही चीज़ हम करने जा रहे हैं। हम वैसे जिस हद तक हमारे पास वसाइल हैं, ह्यूमन पावर है, हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो लीडिंग रोल होगा वो महकमा ज़राअत का होगा, और हम इनके साथ चलेंगे। हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, हम इनके साथ वो भी चलेंगे। हम किस चीज़ में चलना चाहते हैं आप? हम ये चलना चाहते हैं कि जी इसकी सही जो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में मेरी ज़ाती जो ट्रेनिंग्स हैं जी ट्रेनिंग, हम ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम करें, और वो जो हम उसके बाकायदा यानी लिटरेचर बनाएं, बुकलेट्स बनाएं, और हम फार्मर तक ये मैसेज ज़रूर दें कि जी अगर आप एक मीडियोकर प्रोडक्ट के साथ यानी अच्छी एप्लीकेशन के साथ बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोडक्ट, महंगे तरीन प्रोडक्ट के साथ आप गलत एप्लीकेशन करके उसका बहुत पुअर रिजल्ट लेंगे, तो आप अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे होते हैं, आप अपनी मेहनत भी ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये है कि उस प्रोडक्ट को भी ज़ाया कर रहे होते हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो जल्दी ख़त्म होने। बिल्कुल ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि जो लोकल कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, एग्रो केमिकल से रिलेटेड और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, जो ट्रेनिंग है आप इन्हें भी एंगेज कर सकते हैं आप, या ये आप फैसिलिटेट कर सकते हैं प्रोग्राम में कहीं पे? जी ये बिल्कुल बात सही है कि वी आर ऑलवेज ओपन गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। हम चाह रहे होते हैं कि हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक आम ज़िम्मेदार तक पहुंचाने के लिए जितने वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल ठीक। उसमें पेस्टिसाइड कंपनीज़ की भी मदद हमें मिलती है, हम वो भी लेने को तैयार होते हैं। लेकिन जिस तरह बात हुई सॉफ्ट, करेक्ट एंड वाइज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, हम ओवर यूज़ के इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि इससे पेस्ट प्रेशर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि एंटागोनिज्म भी बहुत ज़्यादा खेत में क्रिएट होता है। एक पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारी रेकमेंडेशन होती है कि आप एक ब्रांड की बजाय तब्दील करके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें अगर सिमिलर पेस्ट है, ताकि कोई रेजिस्टेंस का इशू ना आए। और करेक्ट यूज़ जो है, ये दिस इज़ गुड वर्ड कि करेक्ट यूज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं जिस तरह आगे आगे वक्त आएगा। लेकिन कट शॉर्ट ये कि मैं काश्तकार से गुजारिश करूँगा कि अगस्त 15 तक आपको कपास उगाने वाले बंदे को खेत में अक्सर नज़र आना चाहिए, ताकि वो मसाइल को वहीं पर काबू कर सके। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि मैसेज ये है कि आप कपास का काश्तकार खेत में रहे और ज़रूरत के वक्त बाहर निकले, इतना ही मत हर वक्त तवज्जो उसकी इतनी देनी चाहिए कि उसको आप फोकस हर वक्त अपनी नज़र रखनी चाहिए। कपास अगले एक महीना, एक महीने के अंदर कद बढ़ रहा है, पानी लग रहा है, खाद डाल रही है, बारिश हो रही है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसमें और सबसे बड़ी रेट भी बड़े चंगे हैं, तो इस वजह से उसको हौसला करना चाहिए और चीज़ों में। डॉक्टर रशीद साहब आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे फार्मर को कहने का उनका मकसद ये था कि बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए और पूरा फोकस होना चाहिए कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि उसको खेत में रहना चाहिए। इसके ऊपर भी हमने अपना जो सर्वे किया, हमने ये उससे पूछा कि जी आप वाइट फ्लाई की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, आपको कैसे किस तरह डिसीजन करते हैं कि जी वाइट फ्लाई आ गई, हमने स्प्रे करना है। तो उनमें से बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज में मिले। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा जी हम पौधे को हिलाते हैं, वाइट फ्लाई उड़ती है तो हमें पता चल जाता है कि जी वाइट फ्लाई है। अब इसमें देखिए कि जो निम्फल पॉपुलेशन है वो मोबाइल नहीं है,
ठीक है ना, वो स्टिक हुई हुई है और वो पॉपुलेशन एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। अच्छा, उसको वो कंसीडर नहीं कर रहे। फिर वो यहाँ तक भी कहा लोगों ने कि हम खेत से जब गुजरते हैं ना तो कपास काली हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि यानी यहाँ पे वो वाइट फ्लाई है। कुछ ने ये कहा कि जी लीफ कर्ल वायरस को देख के हमें पता चल। अब ये वो स्टेज है काली होना या लीफ कर्ल वायरस जब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यानी उनकी जो स्टेज ऑफ एप्लीकेशन है। फिर हमने ये पूछा कि जी किस स्टेज पे आपने स्प्रे किया। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जी जब यानी 5 से ऊपर वाइट फ्लाई हो जाती है, 10, 12 यानी 20 तक भी, तब हमने पहला स्प्रे किया। तो ये चीज़ें भी अगर डॉक्टर साहब का जो मशवरा है ये फार्मर मान ले और वो वाकई बहुत ज़्यादा फोकस करे कपास के ऊपर, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि वो इतना ले। जब यूं ही वाइट फ्लाई कैसी चीज़ है, जब ये कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना। तो इसको अर्ली स्टेज पे ही करना चाहिए। और एक सर और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि ईटीएल की बड़ी बात हो रही है कि ईटीएल पे स्प्रे करें। अब ईटीएल को 30-35 साल पुराना जो है ना वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है। अब चूँकि ये है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक्स बदल चुके हैं। तो अब ये है कि फिर या तो ये है कि ईटीएल को हर साल हमें रिवाइज करना चाहिए, इसके ऊपर स्टडीज़ होनी चाहिए, या दूसरी बात ये है कि अभी जो वाइट फ्लाई की जो इस वक्त हमें सर्विलेंस की ज़रूरत है, उसमें हमें ये चाहिए कि हमें नंबर्स दे देने चाहिए, ये 3 से 4 या 2 से 3 वाइट फ्लाई के ऊपर आप स्प्रे कर दें। तो इस किस्म की मैनेजमेंट मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने उसमें डालें अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब से जो कहा उस पर बात करते हैं, लेकिन हमें फिर छोटा सा एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही अहम मरला है कपास का, और उस हवाले से जो डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी एक्सटेंशन, और डॉक्टर रशीद साहब जो क्रॉप लाइफ एसोसिएशन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी। और कपास जिस अहम मरले में है, आपने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा कि ये जो एक महीना है, कपास के काश्तकार को ये जहन में रखना चाहिए कि अगर उसने कमाना है इस फसल में से, तो वो अब उस एक महीना उस पर फोकस रखे। लेकिन अभी जो जिस तरह बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो पेस्ट अटैक का ख़तरा है, आगे जो बारिशें आ रही हैं, आमतौर पर रूटीन पे देखने में आता है कि ऐसे मौसम में बारिशों के फ़ौरन बाद सफ़ेद मक्खी और तेले का जो हमला होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्या कोई इस वक्त कोई टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है? जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आम काश्तकार को पता नहीं है कि पेस्ट का कब उसे स्प्रे करना है, कब उसे एग्रेसिव होना है, और कब सिर्फ पहले ही मरले पे उसे रोकना है, आइडेंटिफाई करना है, आपसे मशवरा करना है। तो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक फ़ायदा मंद हो सकता है काश्तकार के लिए? ड्रोन व्रोन तो हमने नहीं देखा, लेकिन क्या ऐसा है कि पाकिस्तान में भी कभी ड्रोन का इस्तेमाल, इस तरह की टेक्नोलॉजी इस तरह के फसलों के लिए भी, पैदावार में इजाफे के लिए भी हो सके? जी, पहले ड्रोन की बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ या ड्रोन के ऊपर कोई लाइसेंस इशू हुए हैं, उसमें एग्रीकल्चर यूज़ भी है, और आपको कुछ अर्सा में अच्छा इस चीज़ के अंदर डेवलपमेंट नज़र आएगी। दूसरी, जब हम क्रॉप की बात करते हैं तो यकीनन क्रॉप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ETL और करेक्ट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। सर, हम IPM की बात कर रहे हैं। IPM के अंदर जो बाकी मरले हैं, जिसमें कल्चरल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल, इसको हमने इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन ETL की बुनियाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अपीयरेंस की बुनियाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड करेक्ट यूज़ ऑफ नोजल्स एंड पेस्टिसाइड स्प्रे के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर ज़िम्मेदार ने अपने खेत में ये देखते हुए कि पेस्ट पोजीशन क्या है, उसके कंट्रोल पे जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पेस्ट वार्निंग के थ्रू हम पेस्ट अलर्ट्स भी इशू कर रहे हैं। अच्छा, हम हॉट स्पॉट भी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम SMS रोबो कॉल की मदद भी ले रहे हैं, हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ भी करेंगे, हम ब्रोशर्स भी दे रहे हैं, अखबारों के ज़रिए भी आ रहे हैं। हम अकॉर्डिंग टू द पेस्ट सिचुएशन इस कैंपेन को, अवेयरनेस लेवल को मज़ीद बढ़ाएंगे। लेकिन हम तवक्का करते हैं अपने भाई से कि वो अपने खेत को खुद ज़रूर देखेगा और अपने खेत की जो पेस्ट स्काउटिंग है उसके बारे में मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशंस हैं कि वो रेंगने वाली चीज़ है, उसका कोई स्पॉट है,
उसके कोई एग्स हैं और एक्सटेंशन एजेंट्स की मदद है, गांव के प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स की मदद है, वो अपने खेत को बेहतर तौर पे कंट्रोल करेगा। क्योंकि जब माहौलियाती तब्दीली होती है, जब हवस बढ़ता है, तो उसमें पेस्ट पॉपुलेशन अमूमन तमाम क्रॉप्स में इंक्रीज होती है। सही। कॉटन के अंदर चूंकि सक्यूलेंस बढ़ेगी, क्योंकि पानी लगना है, खाद डलनी है, पत्ते ने नरम होना है, तो वो सेफ एक हदफ हो सकता है। इसलिए पेस्ट पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। सर। तो काश्तकार को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, सही पेस्टिसाइड के इंतखाब की ज़रूरत है और सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ाएं। इस साल भी हम बहुत अच्छे तरीके से बड़ी मजबूत हिकमत अमली के तहत साउथ पंजाब की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट है उसकी सुपरविजन में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस कपास को एक अच्छी कपास के तौर पे हुकूमत के लिए और काश्तकार के लिए नेक नामी कपास बनाएंगे। सही। अच्छा, आपने बार बार जिक्र किया करेक्ट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जो एनवायरनमेंट के हवाले से जब पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये पेस्ट अटैक्स वगैरह ज़्यादा हुए हैं, चीज़ें हुई हैं सेफ़। और ये जो आप बात हुई, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, एनवायरनमेंट के हवाले से किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं क्रॉप लाइफ या PCPA या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से लोग? क्या वो इस हुकूमत के इस जो रिजर्वेशंस का इजहार होता है और जो इस पे नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है और उसका किरदार बनना चाहिए, रोल बनना चाहिए, तो आप तैयार रहते हैं? आपने किया इस दफ़ा कुछ एक्स्ट्रा? देखिए, हम अपने लेवल पे जो हमारी जो मेंबर कंपनीज हैं उनके अंदर एक इंटरनल कितनी मेंबर कंपनीज हैं आपकी? क्रॉप लाइफ हमारी जी, थोड़ा सा चलिए, आपने अच्छा किया मुझसे ये पूछ लिया। क्रॉप लाइफ एसोसिएशन बेसिकली एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि 1968 में फॉर्म हुई थी और 91 कंट्रीज़ में हम ऑपरेशनल हैं। और इसके फिर सेगमेंट हैं, रीजन्स हैं, जिस तरह के क्रॉप लाइफ यूरोप है, क्रॉप लाइफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसी तरह क्रॉप लाइफ एशिया है। और पाकिस्तान क्रॉप लाइफ जो है ये एशिया का हिस्सा है। तो हमारी जो मेंबर कंपनीज हैं इस वक्त वो 21 हैं। लेकिन अगर आप शेयर्स की बात करते हैं तो हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन में 50% से ज़्यादा वैल्यू बेस्ड शेयर है। और कॉर्न हाइब्रिड्स की बात अगर आप करते हैं तो उसमें हम 90% प्लस है, क्योंकि हाइब्रिड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हम हैं। क्रॉप लाइफ की हमारी जो मेंबर कंपनीज हैं। तो अभी जो आपने बात की थी कि हम किस कदर यानी कि इसकी यानी एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से किस तरीके से हम इसको देखते हैं, और हम इंटरनली हम इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं जो हमारी मेंबर कंपनीज के रिसर्च विंग्स है, ठीक है ना। और उसमें ये है कि हम उसको देखते रहते हैं। हमारे जो इवन यानी शेल्फ पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं। हमारे अगर कोई नए प्रोडक्ट चल रहे होते हैं ना, उसके ऊपर अगर हम जितना काम कर रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा हमारा उन प्रोडक्ट पे उसके रिव्यू के ऊपर हमारा टाइम लगता है कि कहीं उसमें किसी फार्मूलेशन की चेंज है वो हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। या कहीं कोई यूज़ डिटर्मिनेशन में अगर कोई देखते हैं कि जी इसमें रिव्यू की ज़रूरत पड़ गई है, तो हम उसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर हम काम करते हैं। और जब हम गवर्नमेंट को देते हैं प्रोडक्ट अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे पहले हम कम से कम 3 से 4 साल पहले काम कर चुके होते हैं। सही सही। तो आपके जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जैसे हम एक्सटेंशन से तवक्को रखते हैं, तो क्या जो क्रॉप लाइफ खुद भी इन कैंपेन्स को आम मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए उसको करता है? प्रोडक्ट्स की तो होती हैं चीज़ें, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह की पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ख़ास तौर पे जो टारगेटेड हों अवेयरनेस की वजह से, जैसे आपने भी यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड के हवाले से जिस सर्वे की आपने निशानदेही की, तो क्या आप इसको प्रमोट कर सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया रिजवानी साहब। उसमें ये है कि एक तो ये है हमारे कुछ तरीके हैं कि हमने अपना मैसेज यानी हमारे कस्टमर को कैसे पहुँचाना है। पहले आज से अगर 30 साल पहले देखें तो हम सिर्फ फिजिकली कर रहे थे, इन प्लेस कर रहे होते थे, जाते थे, फार्मर को मिलते थे, उसके फील्ड को विजिट करते थे। अब इस दौर में आप देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल और हर चीज़, हम हर टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कंपनीज यानी यहाँ तक है कि कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं कि यानी कि अगर कोई फार्मर, क्योंकि फार्मर भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं,
ठीक है ना। अब उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगली जो जनरेशन है वो हमें कॉल करके भी मशवरा कर सकते हैं, फिर हम व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सारी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में किया हुआ है, सारे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो अब हुकूमत की जो पॉलिसी कपास से निकल कर हुकूमत जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उस तरफ आ रही है, कपास को जदीद खतूत पे इस्तवार करना चाहती है, इस साल से वो प्रोग्राम शुरू हो गया है, उसका इम्पेक्ट जनूबी पंजाब में किस स्पीड से होगा या पंजाब में, क्योंकि आप पंजाब भी देखते हैं उसमें जनूबी पंजाब खुसूसी तौर पे, तो आपके जहन में क्या है कि अगले साल के आखिर तक ज़राअत में किन चीज़ों को आप मुख्तलिफ देख रहे होंगे? फेडरल गवर्नमेंट में जो कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो कॉटन डिस्कशन है उसमें शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं सर, जिसमें सीड चूँकि एक पिवटल पार्ट प्ले कर रहा है। सीड को ट्रैक एंड ट्रेस से शुरू किया गया है, इसकी टैगिंग की ट्रेसिबिलिटी की बात हो रही है, इसकी कंपनीज की ओवरहॉलिंग की शिफ्टिंग की बात हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज की इंपोर्ट की बात हो रही है, और इस पूरी चेन को स्टार्टिंग फ्रॉम द सीड टू द हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्सटाइल तक इस सारी चेन को देखा जा रहा है। इसके अंदर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान को देखें सर, तो सीड सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स आई हैं वो बड़ी क्लियरली दी गई हैं और कुछ डिसीजंस हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइंस में हैं, और ख़ास तौर पे सीड एक्ट के ऊपर, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स के ऊपर और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जोर है। उम्मीद कर रहे हैं कि कॉटन को भी अच्छी सीड टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर लिया जाएगा, अपने एरिया को रिजुविनेट करेगी और कॉटन अपना एरिया बहाल कराएगी। पाकिस्तान में मैसर बीज जो तजर्बे हो रहे हैं, आपको उससे उम्मीद है या आप जदीद जो सीड है जो जिसने रेवोल्यूशन लेकर आया है ऑस्ट्रेलिया में या हमसाया मुल्क में चीज़ों में, तो कॉटन के हवाले से या आप वो टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहेंगे? आपको लगता है क्या फोकस होगा? देखिए 10 साल पहले की बात और है, कपास गिरती थी दोबारा संभल जाती थी। आज बात और है, आज कपास के मुकाबले में बड़े कदावर प्लेयर आ गए हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के साथ। आज कॉर्न के अंदर बहुत अच्छा सीड अवेलेबल है, उसके अंदर मज़ीद भी इंटरवेंशंस आ रही हैं। अगर अच्छे सीड के साथ और भी फैक्टर्स लिंक होते हैं तो और भी बड़ा चैलेंज होगा। राइस एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, राइस एक अच्छी इकोनॉमी भी दे रहा है, प्रोडक्शन भी दे रहा है। इन दोनों की मौजूदगी में एक ड्राई रीजन की क्रॉप को बेहतर टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें नए एरियाज़ भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, कुछ इसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी और कुछ इसके अंदर सीड में कोई नई चेंजेस भी लानी पड़ेंगी ताकि काश्तकार ये महसूस करे कि सीड जो है ये प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन दोनों दे रहा है। सही। हमारा सीड प्रोडक्शन तो कुछ देता है कॉटन का, लेकिन प्रोटेक्शन में इतना मजबूत नहीं है, ख़ास तौर पे वीड के चैलेंज में और पेस्ट के चैलेंज में। सही। दुनिया में चूँकि सीड प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन दोनों को चैलेंज कर रहा है, सर, यहाँ पे भी जितना तकड़ा बीज होगा उतना हम बेहतर तरीके से कॉटन को दोबारा अपने एरिया में ला सकते। अच्छा, तकड़े बीज की तैयारी के लिए सिन्फा ने भी एक चैलेंज लिया है। आपका क्रॉप लाइफ, आपने अभी बात की कॉर्न के हवाले से, क्या कॉटन के हवाले से भी क्रॉप लाइफ जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है? अच्छा बीज के हवाले से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है, फार्मर को सपोर्ट कर सकती है या नहीं? इस पोजीशन में है या नहीं है? देखिए हमारी 2 कंपनीज इस वक्त कॉटन की वैरायटीज़ के ऊपर, कॉटन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, जिसमें एक ICI है और दूसरी सनीफा है। तो लेकिन उसमें ये है कि यहाँ पे मुल्तान में भी हमारा यानी कि वो रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि हमारे कुछ जो सीड एक्ट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन के जो मैकेनिज़्म है, जो पेटेंट प्रोटेक्शन के जो मामलात हैं, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी यानी हमें प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। तो उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना तगड़ा बीज वाली, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा यानी कि रोल प्ले कर सकते हैं। सही। तो आपने कोई हुकूमत से कुछ कहा हुआ है, जी, दिया जी, हुआ है, प्रपोजल्स भेजी हुई हैं? जी जी, हम हर वक्त ही तकरीबन जो है ना हर मीटिंग में ही ये चीज़ जो है उनके साथ डिस्कस करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। डॉक्टर अंजुम भुट्टो साहब, कपास की मौजूदा सूरत हाल पर आपकी
आखिरी कमेंट क्या है कि कपास को फिर एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि हम अपने कपास के ग्रोअर को जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे दे सकें कि उसे क्या करना है और आपकी होप्स क्या हैं? मेरी काश्तकारों के साथ दस्त बस्ता ये गुजारिश होगी कि इस साल इंटरनेशनल मार्केट के हाई होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कपास की बहुत अच्छी कीमतें हैं सर, और मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि काश्तकार इस साल एक अच्छी कीमत हासिल करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि खेत के अंदर जितने फूल लगें वो सारे टींडे बने और जो टींडा लगे वो पूरे वज़न का हो और साफ़ चुनाई के साथ बेहतर पैदावार हासिल कर सके। मेरी गुजारिश होगी कि चुनाई से शुरू करते हुए कीड़े के कंट्रोल को साथ साथ सही संभाल पे तवज्जो दें और उसके लिए कम से कम 1 महीना ये 15 अगस्त तक अपने खेत को मुकम्मल तौर पे निगरानी में रखें और इसके बाद चोनियों के ऊपर सही कंट्रोल करते हुए मैनुअल पिकिंग को खूबसूरत अंडों की तरह इसको चुनाई करें, अच्छे कपड़ों में इसको मार्केट करें और हम कोशिश करेंगे कि हम जिनर्स के साथ मिलके आपको पूरा नरख लेके दें ताकि इस साल कपास के काश्तकारों के लिए खुशियां भरा हो। आपने डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर शीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आपने डॉक्टर न्यूम साहब ने जो मैसेज दिया वो ये था कि कपास का रेट अच्छा है और अगर आप कपास को अब कपास का ग्रोअर उस रेट से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो ये इस अगले आने वाले 4 से जो 6 हफ्ते हैं उसमें कपास पर नज़र भी रखे और उसे अगर अद्वियात का इस्तेमाल करना है तो वो सही उसका इस्तेमाल करे और उसे उसका मिसयूज़ ना हो और ख़ास तौर पे उस इस्तेमाल का जो तरीक़ाकार है जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है उसे अडॉप्ट करें। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।